Hello everyone, welcome back to my channel. This is yet another video on cultural studies where we are going to look at the life and works of Stephen Greenblatt. If you are already a viewer, you know that this is the fifth lecture of our cultural studies series. But if you are new to the channel, I heartily welcome you on this channel with a piece of advice that do go and watch the previous videos also on cultural studies, as that is going to give you a complete overview about the field. As you know that this is a comparatively new literature channel, please consider liking it and also subscribing to the channel, as that is going to give me a good push to make more and more worthy content for you people. So without wasting any further time, let's get started with the video. Today we are looking at Stephen Greenblatt, who is a bit different from our previous two cultural theorists, that is Richard Hogarth and Stuart Hall, because उनके वर्क्स में हम लोग को मार्क्सिज्म का बहुत हैवी इन्फ्लुएंस देखने को मिला था, एंड ऑल्सो दैट दे वर पॉलिटिकली टू इन्वॉल्व इन नोइंग अबाउट द डोमिनेंट कल्चर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द वर्किंग क्लास सोसाइटी. But Stephen Greenblatt is looking at culture from a historical point of view. We'll see on his works how. Stephen J. Greenblatt was born on November 7, 1943, is an American Shakespearean literary historian and author. Now, इनके ये attributes बहुत ज़्यादा important है. Why? Because he dedicated his entire life towards Shakespeare and his studies. इन्होंने पूरी लाइफ अपनी डेडिकेट की है शेक्सपियर के बारे में पढ़ने में एंड उनकी स्टडीज़ और उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में जानने में. दैट इज़ वाई he is known as a literary historian. Literary historian is that person जो किसी भी particular text को historical context के view से देखता है. अब ये तो थोड़ा सा old criticism जैसा sound करता है, where a particular literary text is seen from the eye of the biographical details of the author. Yes, you are right. ये थोड़ा सा वैसा ही है. Hence, this is also a shift from new criticism, and new historicism also opposes new criticism. We'll find that later. Greenblatt is one of the founders of New Historicism, a set of critical practices that he often refers to as cultural poetics. इस word को please याद रखिएगा, cultural poetics, which is closely related to Stephen Greenblatt. पहली चीज़ तो आपको शेक्सपियर से ये बहुत ज़्यादा ही related है. Another thing is cultural poetics. That means कि इन्होंने culture को एक poetical और literary context के according देखा है. ही इज़ अ न्यू हिस्टोरियन. ये हम लोग देखने वाले हैं लिटरेरी थ्योरी के टाइम पे भी. न्यू हिस्टोरिसिज्म इज़ अ लिटरेरी थ्योरी जो किसी भी टेक्स्ट को उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जज करता है और किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट में लिखे गए लिटरेरी वर्क को उसके अकॉर्डिंग जज करता है. सो इट इज़ अ वाइस वर्सा सिचुएशन. वील सी दिस इन डिटेल इन द लिटरेरी थ्योरी. He is also a co-founder of literary cultural journal Representations, which often publishes articles of new historicists. Now, it is very important for you to remember the theorist and also with which journal that particular theorist is related to. हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी हम लोग ने देखा था कि स्टुअर्ट हॉल को फाउंडेड द न्यू लेफ्ट रिव्यू जर्नल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी पुट अप हो जाते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑथर से कौन सा जर्नल रिलेटेड है. सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. ऑल्सो प्लीज कीप मेकिंग अ नोट ऑफ इट. ओके. नेक्स्ट इज he has written and edited many books and articles on the study of culture and analyzed Renaissance studies and Shakespearean studies from his new historic lens. As I already told you कि इनका जो style of analyzing a particular text है वो historic lens के through है, and he has deeply studied Shakespeare, and Shakespeare के सारे works की इन्होंने बहुत डीप स्टडी की है. एंड बिकॉज इन्होंने शेक्सपियर की स्टडी की है एंड ही इज लुकिंग इनटू द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, सो इट इज़ बट ऑब्वियस कि इन्होंने रेनाइसा के ऊपर भी बहुत डीप स्टडी की होगी, बिकॉज रेनाइसा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज अशरिंग इन, एंड शेक्सपियर हमारे उसी टाइम पे, रेनाइसा के टाइम पे ही उनके वर्क्स ब्लूम कर रहे थे. सो इन्होंने इन दोनों वर्क्स को बहुत कीनली स्टडी किया है. Greenblatt is the general editor of the Norton Shakespeare 2015, which is a very recent publication. ये एक बहुत rich textured book है which looks into the works of Shakespeare.
सो यू मस्ट रिमेंबर, जहाँ पे भी आपको शेक्सपियर से रिलेटेड मिल जाए आप बस स्टीफन ग्रीनब्लैट को टिक कर देना. ओके. एंड द जनरल एडिटर एंड अ कंट्रीब्यूटर टू द नॉर्टन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विच इज अ येट अनदर important book, and he has edited it and also contributed highly towards it. Okay. Moving forward, his most famous work, Will in the World, ये इनका सबसे important work है. ओके. शेक्सपियर का ही ये एक वर्क है, अ बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर दैट वाज ऑन द न्यूयॉर्क बेस्ट टाइम्स लिस्ट फॉर 9 weeks. सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. अब ऑफकोर्स वहाँ पे बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर तो नहीं दिया होगा, बट यू हैव टू रिमेंबर द नेम. देर आर सो मैनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन, जो कि उनकी पूरी लाइफ के जितने इंपॉर्टेंट वर्क्स और थ्योरीज हैं वो सारे आपको इसके अंदर मिल जाएंगे. बहुत डिटेल नहीं मिलेगी बिकॉज दैट इज गोइंग टू बॉम्बार्ड योर माइंड विथ टू मच इंफॉर्मेशन. जितना ज़रूरी है उतना आपको इस स्लाइड में मिल जाएगा. ओके. He won the Pulitzer Prize for General Non-Fiction in 2012 for yet another work of his, which is known as The Swerve, How the World Became Modern. Because he belongs to a cultural studies field, तो of course ये देखना चाहते होंगे कि ये मॉडर्निज्म कैसे आया एंड कल्चर पे इसका क्या इफेक्ट हुआ. हेंस यही टाइमलाइन है इनके इस बुक का. ओके. Now we move on to his ideas and works, which is very important from net point of view. Let's see one by one. The term New Historicism was used in his book The Power of Forms in the English Renaissance, where he talks about Queen Elizabeth and Richard II written by Shakespeare. अब सबसे पहले तो इनका जो न्यू हिस्टोरिसिज्म टर्म इन्होंने कॉइन किया है, he has coined this particular term in his book The Power of Forms. ये भी कभी कभी आ जाता है कि आपके किस बुक में कौन से पर्टिकुलर वर्क या आइडिया को डिनोट किया गया है. सो प्लीज़ कीप अ नोट ऑफ इट. इनकी ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द पावर ऑफ फॉर्म्स इन इंग्लिश रिनाइसा, जिसमें इन्होंने न्यू हिस्टोरिसिज्म का टर्म कॉइन किया है. एंड ऑल्सो ही हैज़ टॉक्ड अबाउट क्वीन एलिजाबेथ. अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि वी आर लुकिंग एट अ पर्टिकुलर पर्सन जो एक हिस्टोरियन है. किसी भी टेक्स्ट को वो हिस्ट्री की नज़र से देखेगा, मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट जानने की कोशिश करेगा कि तब के टाइम पे राजा रानी कौन थे, तब का पॉलिटिकल व्यू था, कौन पावर में था, क्या बैकग्राउंड है, ये हमारे हिस्टोरिस्ट देखते थे. ओके. तो शेक्सपियर ने जो रिचर्ड सेकंड लिखी है उस पर इन्होंने इस बुक के बारे में बात की है. इस बुक के अंदर विच इज़ नोन एज द पावर ऑफ फॉर्म्स इन इंग्लिश रिनाइसा. ऑल्सो इन्होंने ओथेलो के बारे में बात की है. एंड ओथेलो में इन्होंने किसके बारे में बात की है? द हीरोइन के बारे में, डेस्डेमोना. और उन्होंने क्या कहा है? अक्यूजिंग हर ऑफ हर सबमिसिवनेस विच कॉज्ड हर डेथ. अब इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जब वर्क उसका एनालाइज किया है तो इन्होंने बोला है कि डेस्डेमोना जो ओथेलो की हीरोइन है, उसकी जो डेथ हुई इट इज़ बिकॉज ऑफ हर सबमिसिवनेस. नाउ आई रियली डोंट बिलीव कि वो उसकी सबमिसिवनेस थी, बिकॉज ओथेलो कुछ ज़्यादा ही वॉज इन्फेक्टेड बाय जेलिसी. आई एम नो वन टू पुट अ क्रिटिक ऑन. सो ये उनकी बुक में दिया हुआ है. Next up, he has talked about his term cultural poetics again in his book Practicing New Historicism. Please remember this work of his कि Practicing New Historicism में इन्होंने cultural poetics के बारे में बात की है, जिसके अंदर इन्होंने literary text को analyze किया है from the lens of New Historicism. तो बार बार इनका एक यही concept आपके सामने आ रहा है. Okay, moving on next in his book Towards a Poetics of Culture, you see कि कल्चरल पोएटिक्स इनका एक टर्म है, टुवर्ड्स अ पोएटिक्स ऑफ कल्चर इनकी एक बुक है. सो मेनी ऑफ हिज वर्क्स आर आइडेंटिकल एंड ईजिली दे कैन बी फाउंड आउट व्हेन गिवन इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके. टुवर्ड्स अ पोएटिक्स ऑफ कल्चर ही हैज एनालाइज्ड द रिलेशनशिप बिटवीन अ लिटरेरी टेक्स्ट एंड इट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. सारे इनके वर्क्स का जो मेन थीम है वो एक ही है. ओके. यू डू नॉट नीड टू नो मच अबाउट द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी बुक. जहाँ इंपॉर्टेंट होगा आई विल गिव यू द डिटेल्स. Next is being a new historian. Greenblatt opposes new criticism and looks into the Renaissance works from the point of view of Renaissance culture in his book Renaissance Self-Fashioning. ये इनकी बहुत important book है. Please keep a note of it. Renaissance Self-Fashioning. इस book में इन्होंने new criticism को सबसे पहले तो oppose किया है. Of course, जैसा कि आपको पता है कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या बोलता है कि किसी भी टेक्स्ट के सिर्फ फॉर्म और स्ट्रक्चर को देखो, हमें ऑथर से, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है. वेयर एज
न्यू हिस्टोरिसिज्म कैसा कहता है कि अगर कोई लिटरेरी टेक्स्ट लिखा है तो हम लोग कैसे ये छोड़ दें कि उस ऑथर ने किस थिंकिंग के अकॉर्डिंग इसको लिखा होगा, उस टाइम का पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या होगा, सोसाइटी में उस टाइम क्या चल रहा होगा. वी कैन नॉट इग्नोर दिस. हेंस न्यू क्रिटिसिज्म एंड न्यू हिस्टोरिसिज्म आपके दोनों ऑपोजिशन में चलते हैं. ओके, एंड वी कम टू नो अबाउट दिस फ्रॉम दिस बुक Renaissance Self-Fashioning, which was published in 1980. Okay, moving forward, his yet another work, next work in his book Shakespearean Negotiations. इनका एक और बुक है. Greenblatt has talked about circulation of social energy. Yes, this is a very important term of Greenblatt, जहाँ पे इन्होंने बताया है कि एक सोसाइटी के अंदर there is a circulation of energy, और वो एनर्जी तब तक मूव करती रहती है या आगे बढ़ती रहती है जब तक उसको बाहर से निकाला नहीं जाता है, उस सोसाइटी से निकाला नहीं जाता है. जैसे कि एक बॉल है, वो एक स्लाइड में मूव कर रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है. जब तक आप उस पर्टिकुलर बॉल को एक्सटर्नली नहीं हटाएंगे, इट विल कंटिन्यू टू मूव डाउन. यही बात इन्होंने सोसाइटी के टर्म्स में बोली है कि कोई वेव अगर सोसाइटी में आती है, कोई पावर विच इज प्रेवलेंट इन सोसाइटी, जैसे कि आप देखेंगे कि पावर है, वंडर है, एक्साइटमेंट है, कुछ भी सोसाइटी में एक नई वेव चलती है, इट विल प्रिवेल इन द सोसाइटी अनलेस इट इज नॉट स्टॉप्ड और टेकन आउट एक्सटर्नली बाय समवन. Okay, so this is known as his theory of circulation of social energy. Social energy is the product of art which moves continuously without stopping. Okay. In his short article, our next work, रेजोनेंस एंड वंडर. नाउ अभी तक हम लोग इनकी बुक्स के बारे में बात कर रहे थे, बट इनका ये वर्क है रेजोनेंस एंड वंडर, विच इज़ ऑल्सो अ टर्म कॉइन्ड बाय हिम. ये इनके एक शॉर्ट आर्टिकल में आता है जहाँ पे इन्होंने एक्सप्लोर किया है इन दोनों टर्म्स को किसके कॉन्टेक्स्ट में, एक म्यूजियम गोअर के एक्सपीरियंस के कॉन्टेक्स्ट में. कि एक पर्सन है, वो म्यूजियम में जाता है, ही लुक्स इनटू सो मेनी आर्टिकल्स, जो कि पुराने ज़माने के आर्टिफैक्ट्स एंड आर्टिकल्स वहाँ पे पड़े होते हैं. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ फीलिंग्स दैट ही इज़ लाइकली टू फील. वन इज़ योर रेजोनेंस, अनदर इज़ योर वंडर. लेट्स सी व्हाट इज़ रेजोनेंस. रेजोनेंस बोला गया है कि ये किसी ऑब्जेक्ट की पावर होती है किसी भी व्यूअर को एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग्स देने में, जो कि उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में फिजिकल बाउंड्रीज को पार कर देता है. सपोज आप किसी एक बहुत पुराने फोर्ट में जाते हैं जहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे राजा रहते थे, यहाँ पे रानियों ने जोहार परफॉर्म किया था, तो यू स्टार्ट रेजोनेटिंग विद दैट पर्टिकुलर थिंग. दैट फीलिंग इज़ नॉट नॉर्मल, और वहाँ की फिजिकल बाउंड्री से कहीं ज़्यादा आपको उस वक्त उस पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट या जगह को देख के फीलिंग आती है. Same thing he is also saying, to be able to make an audience connect with for a longer time, a particular object should be able to resonate something. Example, any work of literature that still resonates with us today. आप शेक्सपियर के ही कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं कि शेक्सपियर के जितने भी वर्क्स हैं वो आज भी रेलेवेंट हैं. लिखा उन्होंने इतने साल पहले है, तब के सोशल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए, लेकिन उनका एक एक वर्क आज भी रेलेवेंट है. आप ओथेलो ले लो, आप हैमलेट ले लो, कि जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग्स है, आप मर्चेंट ऑफ वेनिस ले लो, हाउ द कोर्टशिप पीरियड एंड एवरीथिंग, सब कुछ जो कुछ शेक्सपियर ने दिखाया है वो आज भी रेलेवेंट है. दैट इज़ वाई ही इज़ सो ग्रेट ऑफ हिज नेम टुडे, बिकॉज उनका वर्क आज भी हम लोग के साथ रेजोनेट करता है, हम लोग रिलेट कर पाते हैं. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. वंडर, इट्स अ वाव फैक्टर दैट अ पर्सन फील्स अपीलिंग विद दैट रेजोनेटेड ऑब्जेक्ट. किसी भी रेजोनेटेड ऑब्जेक्ट जो आपको आउट ऑफ द फिजिकल बाउंड्रीज फील करा रहा है, उसमें आपको एक एक्स्ट्रा ओम फैक्टर या एक्स्ट्रा वाव फैक्टर ज़रूर मिलेगा कि दिस इज समथिंग डिफरेंट. वाव, आई गॉट टू सी समथिंग डिफरेंट, आई गॉट टू फील समथिंग डिफरेंट विच इज़ मच मोर दैन इट्स फिजिकल बाउंड्रीज. ओके, सो ये दोनों कॉन्सेप्ट इन्होंने बताए हैं, रेजोनेंस एंड वंडर. ओके, next and his last important work is Greenblatt's 2018 book Tyrant Shakespeare on Power. Now this book is very important क्योंकि critics मानते हैं कि इस book में कुछ ऐसा दिखाया गया है which is resonating with the Trump administration. तब के टाइम पे जो ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन था, जो कुछ भी उसमें हुआ था, तो इस बुक में इनडायरेक्टली क्रिटिक्स फील, इन्होंने डायरेक्टली दिया है या नहीं, यू विल हैव टू गो एंड रीड द बुक फर्स्ट, बट क्रिटिक्स फील, जस्ट अ सेकेंड,
Yeah, is considered by literary critics in leading newspapers as thinly veiled criticism on the Trump administration. ओके, सो ये डायरेक्टली उनके टुवर्ड्स पॉइंटेड नहीं है, बट यू कैन से अगर ऐसा क्वेश्चन, थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन आ जाता है, तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि जब टायरेंट की बात हो रही थी तो टायरेंट शेक्सपियर ऑन पावर हमारा ये वाला वर्क था, एंड यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स फॉर दैट. ओके, सो दैट्स इट फॉर ऑल द ideas and works of Greenblatt. Here I have in front of you 10 important works. अब उनके works तो बहुत सारे हैं, आप सारे learn नहीं कर सकते हैं. ओके, जितने भी इनके most important works थे जिसमें कोई ना कोई term आता है या फिर वो publishing ही उसकी बहुत important है, तो ये है वो 10 works along with the dates. Please keep a note of it. इसमें से आप लोग please पढ़ लीजिएगा. This is very important. सर वॉल्टर रेली, रेनाइसा मैन एंड हिज रोल्स. तो आपको अभी तक पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया होगा कि रेनाइसा पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट, कल्चरल पोइटिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट, शेक्सपियर इज़ इम्पॉर्टेंट, न्यू हिस्टोरिसिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट. तो ये एक ऐसे राइटर हैं जिनके वर्क्स को बहुत ईजिली आप गैस कर सकते हो. बाकी तो बहुत डिफरेंट, बाकी तो सारे वर्क्स एक जैसे लगते हैं, विच वी आर गोइंग टू सी कि कैसे हम उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ओके, so these are the list of works and we have already talked about his major theories. So that's it for it, guys. Thank you so much. If you liked the information, my efforts, and how I have put everything in a single video for you people, then do like and subscribe to the channel. Also click the bell icon, because whenever I will be uploading a video you will get a notification. So thank you so much for being with me. I'll see you in our next video, where we are going to see about Raymond Williams, which is yet another important theorist in our cultural studies field. So thank you.